Concept of locking. Hello everyone, I am Kritika Bhavsar. Welcome to my YouTube channel, and here we are going to discuss some concepts of locking and how lock based protocol is used in database management system. So, first of all, to understand the locking mechanism, we have to understand the concurrency control. So, what is the concurrency control? It is the process of managing simultaneous execution of transactions in a shared database to ensure the serializability of transactions. What's the purpose of concurrency control? Purpose of concurrency control is to enforce isolation, to preserve database, to resolve read-write and write-write conflicts. ईजी वे में समझे तो कॉन्करेंसी कंट्रोल की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है? एक्चुअली जब एक रिकॉर्ड को एक से ज़्यादा व्यक्ति एक ही टाइम पे एक्सेस करना चाहे और उसमें कुछ अपडेशंस करना चाहे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने एक साथ उसमें कुछ अपडेशंस कर दिया हो या कुछ चेंजेस कर दिए हो, लेकिन वो डिस्प्ले या विजिबल नहीं हो पा रहा है दूसरे लोगों को। तो उसी चीज़ को हटाने के लिए या उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल। उसी के लिए दो मेथड यूज़ होती है, उनमें से एक होती है लॉकिंग मैकेनिज्म। कंट्रोलिंग कॉन्करेंट एक्सेस। Databases are shared resources with concurrent processing involving updates. A database without concurrency control will be compromised due to interference between users. There are two basic approaches to concurrency control: a pessimistic approach that involves locking and optimistic approach that involves versioning. However, if one or more users are updating data, then potential problems with maintaining data integrity arise. When one or more than one transaction is being processed against a database at the same time, the transactions are considered to be concurrent. The actions that must be taken to ensure the data integrity is maintained are called concurrency control actions. The most common problem encountered when multiple users attempt to update a database without adequate concurrency control is that of lost updates. हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक अकाउंट है हमारे पास और उसके दो यूज़र्स हैं, नेमली ए एंड बी। एक टाइम पे अगर ए उस अकाउंट का बैलेंस एक्सेस करता है और वो रीड करता है उस अकाउंट के बैलेंस को, तो उसको शो करता है ₹1000। उसके कुछ समय बाद अगर बी उसी अकाउंट के बैलेंस को रीड करता है तो उसको भी ₹1000 बताता है, लेकिन क्योंकि पहले ए ने एक्सेस किया था तो वो पहले विड्रॉ करता है उससे ₹200। तो फिर अब अकाउंट का बैलेंस कितना बचा? ₹800। तो अगर 800 बचा है तो ये उस अकाउंट में अपडेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अपडेशन नहीं हो पाता है और बी को भी अकाउंट बैलेंस 1000 ही दिखाता है। तो वो क्या समझता है कि अकाउंट बैलेंस अभी भी 1000 ही है और वो भी विड्रॉ कर लेता है कुछ पैसे से। हम कह सकते हैं कि अगर उसने 300 रुपये उसमें से विड्रॉ करे तो उसको अब कितना बैलेंस बता रहा है? 700। लेकिन ए को कितना बैलेंस बता रहा है? 800 है। सेम अकाउंट, लेकिन देखो फाइनल बैलेंस 800 यहाँ ए को बताया जा रहा है, यहाँ 700 बताया जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों ने एक्सेस किया सेम अकाउंट को और उसमें अपडेशन भी किया, और वो अपडेशन जो हुए थे वो बाद में डिस्प्ले नहीं हो पाते। तो इसको हम कहते हैं कॉन्करेंट एक्सेस प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लॉकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। अभी हमने जो एग्जांपल देखा उस एग्जांपल में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि एक ही अकाउंट को एक से ज़्यादा यूज़र यानी कि दो यूज़र्स एक साथ एक्सेस कर रहे थे और वो उसमें अपडेशंस कर रहे थे, लेकिन जो वो अपडेशंस कर रहे थे वो डिस्प्ले नहीं हो पा रहे थे। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं लॉक। व्हाट इज़ अ लॉक?
A lock is a variable associated with a data item that describes the status of the item with respect to possible operations that can be applied to it. Generally, there is one lock for each data item in the database. Locks are used as a means of synchronizing the access by concurrent transactions to the database item. Locking concept. The use of record locks is to maintain data integrity. Another transaction cannot access the record until the first transaction has returned the updated record to the database and unlocked the record. The locking mechanism thus enforces a sequential updating process that prevents anonymous updates. लॉकिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। एक अकाउंट होता है और उसमें कुछ पैसे होते हैं और उसके दो यूज़र्स होते हैं, ए और बी। ए आता है और अकाउंट के बैलेंस को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है और उसके बाद वो लॉक लगा देता है अकाउंट पे, जिससे जब तक ए चाहता है तब तक वो उसके रिकॉर्ड्स को, उसके डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और उसके अलावा कोई और यूज़र उसके डाटा को यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि ए उस लॉक को अनलॉक नहीं कर देता या वो लॉक को रिलीज़ नहीं कर देता। अगर बी आता है और रिक्वेस्ट करता है अकाउंट के बैलेंस को एक्सेस करने के लिए तो उसकी रिक्वेस्ट डिनाई हो जाती है। तो ए अकाउंट के बैलेंस को एक्सेस करता है, उसको शो करता है कि उसके अकाउंट में 1000 रुपीज़ है, उसमें से वो 200 रुपीज़ विड्रॉ कर लेता है। तो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो अब हो जाता है 800 रुपीज़। उसके बाद फाइनल अकाउंट बैलेंस 800 रुपीज़ शो हो जाता है और ए का काम हो गया। तो फिर उसने अनलॉक कर दिया अकाउंट को और उस रिकॉर्ड को अनलॉक करने के बाद any other user can be access to the account। तो बी ने पहले रिक्वेस्ट सेंड करी थी, उसकी रिक्वेस्ट डिनाई हो गई तो उसको वेट करना पड़ता है जब तक कि ए अनलॉक नहीं कर देता। तो अब ए ने अनलॉक कर दिया तो अब बी उसके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, तो बी ने भी अकाउंट लॉक कर दिया। अब अगर वो एक्सेस करता है कि अकाउंट में कितना बैलेंस है तो उसको क्या शो करेगा, 800, क्योंकि यहाँ पे अपडेशन हो चुका है ए की वजह से। तो अपडेटेड बैलेंस क्या है अब, ₹800। उसमें से वो विड्रॉ करता है 300 रुपीज़, तो रिमेनिंग बैलेंस बचता है 500। तो फाइनल रिमेनिंग बैलेंस अब अकाउंट में शो होता है 500 रुपीज़ और उसके बाद बी अनलॉक कर देता है अकाउंट के बैलेंस को, जिससे अगर और किसी को एक्सेस करना है तो वो यूज़ कर सकता है। लेकिन जब लॉक लगा हुआ है, जिस यूज़र ने लॉक लगाया उसके अलावा और कोई भी यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता उस रिकॉर्ड को या डाटाबेस को। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉकिंग था ये हमने यूज़ किया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रेफरेंस में, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है अलग अलग फील्ड में भी। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है तो वो जो प्रोसेस होती है अपने रिसोर्सेज तब तक होल्ड ऑन करके रखती है जब तक उसकी पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता। सेम हम अगर देखें जावा में मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट में उसी कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ये तब यूज़ होता है जब दो या दो से ज़्यादा थ्रेड्स को एक ही ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना रहता है, तब उस लॉक को कहते हैं मॉनिटर। तो हमने देखा कि ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ होता है। लॉकिंग में जो ये कॉन्सेप्ट है इसके दो टाइप्स होते हैं लॉक्स के, उनको हम कहते हैं शेयर्ड लॉक एंड एक्सक्लूसिव लॉक, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।